Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to see the definition of Banach space and some examples of Banach space. Okay, so let's start. First, we'll see the definition of Banach space. Yes, so write down Banach space. Banach space की definition क्या है? A complete non-linear space is called a Banach space. A definition is very simple and very short. Okay, a complete non-linear space is called a Banach space. राइट और इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कैसे ए नॉन लीनियर स्पेस is a Banach space if every Cauchy sequence in x converges to some point of x. यहाँ पे completeness देखो, completeness का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास एक स्पेस है, ठीक है, x, और इस स्पेस में अगर हम कौन सी भी सीक्वेंस कंसिडर करें, कॉची सीक्वेंस कंसिडर करें, सपोज वी हैव ए सीक्वेंस xn, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस xn हमारी x पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है तो दिस x शुड बी बिलोंग्स टू व्हाट given space, then we can say that this x is a complete space. Okay, so here a definition of Banach space is a complete non-linear space is called a Banach space. So let's see some examples here. First example is set of real number. Okay, so we have to prove that this set of real number is a Banach space with norm. Okay, with norm, and norm कैसे define किया है हमारा? Norm x is equals to mod x, and here for all x belongs to R. दैट मीन सेट ऑफ रियल नंबर. अभी हमें क्या करना है कि दिस आर को क्या करना है? Banach स्पेस प्रूव करना है. इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? दिस आर इज ए नॉन लीनियर स्पेस एंड आफ्टर दैट वी विल प्रूव this non-linear space is a complete. Okay, so first we will prove this R is a non-linear space using this norm. Okay, so what are properties of non-linear spaces? Non-linear space are what? First we will show that this norm x is greater than equals to 0. Okay, greater than equals to 0, and this norm is equals to 0 if and only if x is equals to 0, and this is true for all x belongs to x. देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि norm x. ओके, norm x is equals to what? Mod x. mod always क्या होता है? is equals सॉरी ग्रेटर देन 0 होता है, राइट? norm सॉरी mod हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो implies that what we can say that this norm x is greater than 0. ओके, and equal 0. देखो ये mod x 0 is equals to mod x 0 कब होगा? जब this x is equals to 0, then we can say that this norm x is equals to mod x is equals to 0 if and only if x is equals to 0. राइट, ये हमें सिस्टमेटिकली लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो फर्स्ट वन, norm x is equals to what? Mod x, right, which is greater than equals to 0, and this is true for all x belongs to set of real number, right? Implies that what? Here we will get norm x is greater than equals to 0, and this is true for all x belongs to set of real number, right? Now अभी हमें क्या प्रूव करना है कि नॉर्म x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू 0. देखो अभी यहाँ पे हमारा नॉर्म x इज इक्वल्स टू क्या है? मॉड x, राइट? मॉड x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है. दैट मीन्स व्हाट? नॉर्म x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ मॉड x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इफ एंड ओनली इफ दिस x इज इक्वल्स टू 0. ये हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे कि नॉर्म x इज इक्वल्स टू क्या है? 0 है. इसका मतलब क्या है कि नॉर्म x इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉड x. दैट मीन्स दिस मॉड x विल बी 0, राइट? मॉड x कब 0 होता है? जब ये x क्या होगा? 0 होगा. दैट मीन्स हियर वी गेट दिस नॉर्म x इज इक्वल्स टू 0 implies that this x is equals to 0. अब कॉन्वर्सली हम कैसे कंसिडर करेंगे? this x is equals to 0 implies that this mod x is equals to 0, and mod x means what? Norm x is equals to 0. This will we get this norm x is equals to 0 if and only if this x is equals to 0. This is first property of non-linear space. Now second property is what? This norm x plus y is less than equals to what? Norm x plus norm y. ये हमें प्रूव करना है, and this is true for all x y belongs to set of real number. Now we can write this what? Mod x, sorry, norm x plus y is equals to what? We can write mod x plus y, and this we can write this mod is less than equals to what? Mod x plus mod y, right? This mod y, ये mod की प्रॉपर्टी हम सबको पता है. तो this is equals to what? Mod x means what? Norm x, and mod y is equals to what? Norm y.
राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिला कि norm x plus y is less than equals to norm x plus norm y, and this is true for all x y belongs to a set of real number. Okay, now ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम। कौन सी थर्ड वाली? नॉर्म अल्फा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? मॉड अल्फा नॉर्म एक्स, राइट। ये हमें प्रूव करना है। तो अब पहले हम लिखेंगे नॉर्म अल्फा एक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म? मॉड अल्फा एक्स, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मॉड अल्फा मॉड एक्स वाई, बिकॉज मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट? मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, राइट। नाउ हियर what we have this mod alpha into, यहाँ पे ये क्या है हमारा? mod x means what? norm x, ठीक है। ये वेरिएबल के लिए, ठीक है। ये जो कोई मतलब जिसपे हम नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, ये मॉड अल्फा क्या होगा हमारा? बाहर आ गया, तो हमें क्या मिला? ये norm alpha x is equals to this alpha is a scalar, okay, mod alpha norm x. So from 1 to 3 we can say that this R is a norm linear space, right? Now हमें क्या प्रूव करना है कि completeness of norm linear space, that means completeness of set of real number. तो हम क्या करेंगे? एक कॉची सीक्वेंस कंसिडर करेंगे। दिस इज ए let this is a Cauchy sequence in R, okay, in set of real number. That means what? हमें पता है कि every Cauchy sequence in R, हम रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। राइट डाउन note what? every Cauchy sequence in set of real number is bounded in R, okay, is a bounded in R. ये नोट है। तो हमने ये कॉची सीक्वेंस कहाँ से ली है? सेट ऑफ रियल नंबर से ली है। तो इस नोट के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? दिस कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, राइट, इज बाउंडेड। यस। नाउ बोल्जानो-रिस्टार्स थ्योरम, बाय हियर हम क्या यूज करेंगे? बोल्जानो-रिस्टार्स थ्योरम। सो बाय बोल्जानो-रिस्टार्स थ्योरम, every bounded sequence has at least one limit point, right? ये थ्योरम हमें क्या बोलता है कि every bounded sequence has at least one limit point, right? Has at least one limit point. वन लिमिट पॉइंट, ये थ्योरम हमें ये बोलता है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या लिख सकते हैं कि एंड इफ सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस व्हिच कन्वर्जेस दैट लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर देखो हमने क्या लिखा? एक कॉची सीक्वेंस ली xn फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? एवरी कॉची सीक्वेंस इन R इज ए बाउंडेड इन R। तो जो हमने कॉची सीक्वेंस ली थी xn इज व्हाट? बाउंडेड। एंड बोल्जानो-रिस्टार्स थ्योरम के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑलवेज हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस को एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसके हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि if sequence has a limit point then there exists a subsequence which converges that limit point. तो हम क्या करेंगे? implies that हमें क्या मिलेगा उस थ्योरम के हिसाब से? this Cauchy sequence has a convergent subsequence, okay, has a convergent subsequence, okay. now अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? if Cauchy sequence has a convergent subsequence then it is also convergent, okay. Write down, if Cauchy sequence has a convergent subsequence, then it is convergent also. Then it is convergent also. Implies that what? This xn is what? Convergent in R. xn is convergent in set of real number. देखो यहाँ तक हम कैसे आए कि हमने क्या किया कि एक कॉची सीक्वेंस कंसिडर कर ली, कहाँ से? सेट ऑफ रियल नंबर से, राइट। उसके बाद हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, राइट, इन आर।
देयरफॉर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड। और यहाँ पे हम बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी को, और देखो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, राइट। और एवरी बाय यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, बोल्जनो-वीर्स्ट्रास थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑलवेज हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अगर कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है तो उसमें एक सीक्वेंस एग्जिस्ट होगी कि जो इस लिमिट पॉइंट को, जो भी हमारा लिमिट पॉइंट है उस लिमिट पॉइंट को कॉन्वर्ज होगी, राइट। So, and if a sequence has a limit point, then there exists a subsequence which converges that limit point. तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, this sequence has a convergent subsequence. देखो, implies that here we have written this xn has a convergent subsequence. And और एक नोट क्या है हमारे पास कि if Cauchy sequence has a convergent subsequence, देखो अभी यहाँ पे हमने लिखा है कि this Cauchy sequence has a convergent subsequence, तो इसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है, इफ कॉची सीक्वेंस हैज कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन इट इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट। मतलब अगर एक्सन को एक कॉची कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल रही है तो इसका मतलब होता है कि ये कॉची सीक्वेंस भी कैसी है, कॉन्वर्जेंट है। और इसके हिसाब से हमने लिखा कि दिस कॉची सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट इन सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये रियल जो कोई लिमिट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो ये सीक्वेंस हमारी कहाँ पे कॉन्वर्ज हो गई, इन आर, राइट। और कंप्लीटनेस की हमारी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस है उसका जो कॉन्वर्ज होगी कहाँ पे, उसी स्पेस में, राइट। तो ये कॉची सीक्वेंस है कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रही है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दिस सेट ऑफ रियल नंबर इज कंप्लीट, कंप्लीट नॉन लीनियस स्पेस। अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट नॉन लीनियस स्पेस होती है तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस आर इज ए बर्नक स्पेस। ओके, सेम आप किस लिए, देखो अब हमने कौन सा एग्जांपल देखा, सेट ऑफ रियल नंबर। इसके हिसाब से आप देखो सेम प्रोसीजर है, आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस उठा सकते हैं और उसको दिस सेट ऑफ रियल नंबर में ही कन्वर्जेंट दिखा सकते हैं। और सेट कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप कैसे, नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्म z इज इक्वल टू व्हाट, मॉड z, एंड दिस z बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम प्रोसीजर करनी है तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए बर्नक स्पेस, राइट। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है होल्डर्स इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ओके। ये इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि लेट x इज इक्वल टू xi I, okay, this I running from 1 to infinity is belongs to LP space. So and y is equals to eta I, and I running from 1 to infinity is also belongs to LQ space. Then what, summation of mod xi I eta I is less than equals to what, summation of mod xi I raised to p raised to 1 upon p into what, into what, summation of mod eta I raised to q raised to 1 upon q, okay। this here आप बोल सकते हैं कि this j running from 1 to infinity and k running from 1 to infinity, okay। here this I running from 1 to infinity, ये क्या होगा हमारा होल्डर्स इनइक्वालिटी हो गई। देखो यहाँ पे मैंने जे और के लिखा है, यहाँ पे आप आई भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ नोटेशन मैंने यूज किया है, सेम नोटेशन ना हो इसलिए, ठीक है। यहाँ पे आप आई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड जो इनइक्वालिटी है कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, कॉची, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, दिस इज अ स्पेलिंग, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, ओके। इसका मतलब क्या होता है, यही इनक्वालिटी है, सिर्फ हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू टू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या एल पी स्पेस लिया, यहाँ पे एल क्यू, तो P की जगह हम 2 रख देंगे, Q की जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं ये इनक्वालिटी कैसे लिखेंगे, इस समेशन ऑफ मॉड xi I eta I is less than equals to what, summation of mod xi I, क्या, और आप जे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इंटू समेशन ऑफ मॉड ईटा के, ओके, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ओके। यहाँ पे जे रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एंड
यहाँ पे आप लिख सकते हैं k रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे i रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू व्हाट? समेशन ऑफ मॉड xi eta I इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? नॉर्म x इंटू नॉर्म y। नॉर्म x की वैल्यू क्या है? ये समेशन ऑफ मॉड xi I स्क्वायर रेस टू व्हाट? स्क्वायर रूट। ओके, और नॉर्म y इज इक्वल्स टू दिस टर्म। सो ये आप बोल सकते हैं कि दिस इज ए कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? यहाँ पे हम लिखेंगे j, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे k, और फिर बाद आप k रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड i रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन हम क्या लिखेंगे? थर्ड वन इक्वालिटी। थर्ड वन इज ए मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। yes, let what? X is equals to xi I, okay, I running from 1 to infinity is belongs to LP space, and y को भी consider करेंगे eta I, so that what? I running from 1 to infinity is also belongs to LP space। then क्या लिखेंगे? summation of mod xi I plus eta I raised to p, इसका क्या करेंगे हम? pth रूट निकालेंगे, ठीक है, which is less than equals to सेम है समेशन ऑफ xi I रेस टू p रेस टू pth रूट। ओके, एंड प्लस समेशन हम क्या करेंगे? सिर्फ सेपरेट कर देंगे, मॉड्स ईटा I रेस टू p रेस टू 1 अपॉन p। ठीक है, यहाँ पे I रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पे भी I रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हम, और यहाँ पे भी I रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारी हो गई मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। ये सभी इनइक्वालिटी हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये इनइक्वालिटी आपको लिखवा दी। और नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे? दिस आर एन को आप कैसे, आर को जैसे हमने क्या किया कि बनाक स्पेस प्रूव किया, उसी हिसाब से आपका क्या कर सकते हैं? आर एन को भी बनाक स्पेस प्रूव कर सकते हैं। वो बाय यूजिंग द नॉर्म एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस वन, नॉर्म एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मॉड xi I स्क्वायर रेस टू 1 upon 2, I running from 1 to infinity, sorry, I running from 1 to n। ओके, ये हो गए हमारा नॉर्म x। ये नॉर्म और ये x क्या होता है हमारा? देखो x क्या होगा हमारा? Rn से होगा, इसका मतलब x कैसे होगा हमारा? xi I। ओके, xi I running from 1 to n। ओके, और इसका मतलब ये ऐसा है कि n टपल्स होगा, xi1 xi2 up to xi n। This belongs to what? Rn, and each xi I, this xi I belongs to what? R, for all I। अब ये बात समझ में? हमने क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ बनाक स्पेस देखी और उसके एग्जांपल्स देखे, राइट? और ये आपके लिए होमवर्क है क्या? Rn को बनाक स्पेस प्रूव करना, और सम इनइक्वालिटीज देखी। आगे के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? जो थ्योरम है उसका, थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ। थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर हमारे पास m है, ठीक है, m क्या है हमारा? क्लोज लीनियर सबस्पेस है, ठीक है, क्लोज लीनियर सबस्पेस, क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस। ओके, नॉन लीनियर स्पेस n, n क्या है हमारा? नॉन लीनियर स्पेस है, और m क्या है? उसका क्लोज सबस्पेस है। ओके, एंड इफ द नॉर्म ऑफ ए कोसेट x प्लस m, हमें क्या दिया है? कोसेट दिया है x प्लस m, और इसका जो नॉर्म है, नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या दी है? इन ए क्वेश्चन स्पेस। ये नॉर्म कोसेट किसका है? क्वेश्चन स्पेस n ओवर m का। ये हमारे पास क्या है? n ओवर m है, दैट मीन्स ए क्वेश्चन स्पेस। देखो मैं पूरा स्टेटमेंट लिखवाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये थ्योरम ए है, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट m बी ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस, linear subspace of non-linear space, and if the norm of a coset, x plus m in the quotient space,
क्वेश्चन स्पेस n ओवर m। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन स्पेस है। इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया है हमारे पास, ये x नॉर्म x प्लस m इज इक्वल टू व्हाट, इनफीमम ऑफ दिस सेट। सेट के एलिमेंट्स कैसे है, x प्लस m, सो दैट दिस m बिलोंग्स टू दिस सबस्पेस। ओके, इसको हम स्टार बोल देंगे। देन व्हाट, देन n over m is a non-linear space, is a non-linear space, and further if what, if n is a Banach space, n is a Banach space, then so n over m। ठीक है, ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या दिया हमें यहाँ पे, देखो m को क्या है, नॉन लीनियर, m भी इज ए क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस, एंड द नॉर्म डिफाइन किया है किसका, कोसेट का, ऑन द क्वेश्चन स्पेस n ओवर m। n ओवर m क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन स्पेस है, तो उसका नॉर्म क्या डिफाइन किया है, कोसेट का नॉर्म x प्लस m इज इक्वल टू क्या है, इनफीमम ऑफ दिस सेट। और इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, नॉर्म x प्लस स्मॉल m, एंड दिस स्मॉल m इज बिलोंग्स टू व्हाट, m। m क्या है हमारा, क्लोज लीनियर सबस्पेस है। तो हमें प्रूव क्या करना है, इतना सारा पार्ट हमें प्रूव करना है। देन n ओवर m को हमें क्या प्रूव करना है, नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना है। इसका मतलब नॉन लीनियर स्पेस के सभी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि देखो, इफ हमारे पास क्या है कि n बनाक स्पेस है। ठीक है, अगर n हमारा बनाक स्पेस होगा, ठीक है, n हमारा बनाक स्पेस होगा, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये कंसिडर करके कि n बनाक स्पेस है, हमें क्या प्रूव करना है कि दिस क्वेश्चन स्पेस इज आल्सो ए बनाक स्पेस। तो इसका प्रूफ हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आगे का जो वीडियो आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का पूरा प्रूफ देखेंगे। तब तक टेक केयर।